Students, another lecture. In this, we shall be dealing with electrochemical methods of analysis. This is very highest version. Till now, we had been dealing with the aqueous, non-aqueous, the precipitation, gravimetric, and the various redox titration. Now, this is a very important method here, which we are discussing in this lecture. Electrochemical method, as the name suggests, this is a electrical measurement by which the chemical is being analyzed, where by electrical measurement we are using the potential or the current changes और द वेरियस द चार्ज के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है उसके आधार पर हम इसको एंड पॉइंट का डिटेक्शन करते हैं. हियर द एनालाइट इज बीइंग डिटेक्टेड बाय मॉनिटरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर from the various electrodes, from the two electrodes and the anode to the cathode, or the amount of current is being measured depending upon the method, potentiometry, voltammetry, conductometry जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं. Now this is a very important lecture. Why? Because this particular electrochemical method of analysis, this has a very high sensitivity and a very small amount of drugs or the chemicals or the molecules can be detected in a very dilute amount also. So this is a very important method. Here the key points in this electrochemical methods are here, which are the various instrumentations are there. Before we move to the types and the working of this methods, we are here just seeing a general description of the वेरियस टाइप्स जो हमने देखे पढ़ने वाले हैं. फिर अपन जो हमारे सिलेबस में 3 पॉइंट्स हैं उनको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द कंडक्टोमेट्री. हियर वी आर मेजरिंग द कंडक्टोमेट्री कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. द करेंट चार्जेस से कंडक्टिविटी जैसा भी आपका केमिकल रिएक्शन के आधार पर होगा. देन वी हैव द पोटेंशियोमेट्री, पोटेंशियल को नापेंगे हम. वोल्टोमेट्री, यहाँ पे भी वोल्टेज या वोल्ट्स के फॉर्म में अगेन पोटेंशियल है उसको नापेंगे, साइक्लिक वोल्टोमेट्री कहते हैं. एम्पीरोमेट्री, एम्पियर मीन्स करंट, हम यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट रख करके करंट को मेजर करेंगे. कॉलोमेट्री, यहाँ पे कूलम में एनर्जी के फॉर्म में हम इसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करके अपन इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस एंड पॉइंट इन from all these 4 or 5 methods we reach the end point, and at the end point we can see a very important visual or another methods by the current or potential we can measure the end point. Now the key electrochemical concepts जो and techniques we use हैं जो हमारे syllabus के हिसाब से most important है. First and foremost is the conductometry. Here conduction is the main principle here. This measures the electrical conductivity of the solution, here by which by solution we mean the analyte जो कि अपन टाइट्रेशन में प्रयोग करते जा रहे हैं. और यहाँ पर हमको जो कंडक्टोमेट्री में जो वेरियस अपन जो मेथड्स यूज़ करेंगे उनमें हमारा फिर बाकी इलेक्ट्रोड और हमारा पोटेंशियोस्टैट, एनालाइट वगैरह कौन सा यूज़ करेंगे इसको अपन बाद में देखते हैं. कंडक्शन के बाद में अगर हम आधार बनाएंगे तो कंडक्टोमेट्री रहेगा. व्हेन वी यूज़ द पोटेंशियोमेट्री, सो हियर वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. Here the current is might be the current is kept constant and the potential different, the voltage का जो अंतर होता है जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, हम उसको we are going to correlate this with the analyte concentration by the use of the pH meters. Then after conductometry and potentiometry in general we are seeing the polarography method. Now this is another important method. हम यहाँ पर इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक होती है, इसमें वी आर गोइंग टू अगेन मेजर द करेंट वर्सेस द वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ चार्ट और डायग्राम. हियर वी आर यूजिंग अ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड. हियर द मर्क्यूरी इज ड्राइंग, देयर इज अ इंस्ट्रूमेंटेशन, पूरा सेल बना रहता है विच इज़ DME, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड. देन वी आर सीइंग द होल करंट सर्किट पूरा बना रहेगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में. वी हैव द क्वांटिटेटिव और the qualitative analysis, both can be done by these things. Here we are having the graph which is curve. Curve is definitely called as polarogram.
पोलैरोग्राफी, इसी से उसका नाम पड़ा है। और हाफ वेव पोटेंशियल और फिर अपन डिफ्यूजन को मेजर करके इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। वैसे तो और भी अदर मेथड्स हैं, हम डिटेल में स्टडी करेंगे कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, पर एक जनरल व्यू ले लेते हैं कि अदर मेथड्स जो हमको इम्पॉर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं। हमारे सामने है वोल्टामेट्री, एम्पीरोमेट्री, कॉलोमेट्री, इलेक्ट्रोग्राविमेट्री। शॉर्ट में इनका प्रिंसिपल अपन देख लेते हैं। वोल्टामेट्री में वोल्टेज चेंजिंग पोटेंशियल को नापते हैं और करंट को आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिफाइंग सब्सटेंसेस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के आधार पर निकालते हैं। एम्पीरोमेट्री में हम यहाँ पर पोटेंशियल को फिक्स कर देंगे तो हमको करंट का मेजर, क्योंकि वोल्टेज V=IR के हिसाब से हमको एक को कांस्टेंट करने से दूसरे का मेजरमेंट हो सकता है। कूलम्स, यहाँ पे अगर कॉलोमेट्री की बात करें तो वी आर हैविंग द कूलम्स, द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, जो कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एनालाइट पूरा डिटेक्ट हो जाएगा तो हमको उसका एनर्जी का कन्वर्जन प्राप्त हो जाता है। इलेक्ट्रोग्राविमेट्री, अगेन हियर देयर इज अ electrons, the current is being measured and the precipitate is being formed. So this is a mixed type of electrochemical analysis. Here the controlled potential difference जो हमने लगाया है, एनालाइट को हम प्लेस करते हैं एक इलेक्ट्रोड पर और फिर इसको अपन डिटरमाइन करते हैं ग्रेविमेट्रिकली। ग्रेविमेट्रिकली मतलब हमारा जो इनसॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल हमारा एनालाइट है उसको अपन इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, फिर अपन उसको ग्रेविमेट्रिकली उसको एनालाइज कर सकते हैं। नाउ इनके जो मेजर एडवांटेजेस इस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के हैं वे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। वी आर हैविंग दिस वेरियस इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। हाई सेंसिटिविटी, जैसे कि रेडॉक्स राइटेशन में था, मिनिमल सैम्पल प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, टाइम कंज्यूम नहीं होता है और रियल टाइम डाटा मिलता है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी वर्सेलिटी का है कि इसको फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री सब जगह प्रयोग करा जाता है कि हमेशा हमको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और केमिकल प्रोसेस की दिखते रहती है, अलग से बार बार हमको डिटेक्शन नहीं करना पड़ता और इट इज़ क्वाइट वर्सेटाइल। और इसको अपन बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल स्टेट्स अपन इसको एनालाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसके लेक्चर के एंड में देखेंगे इसके अलावा और कौन कौन से इसके डिटेल्ड एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। हियर वी आर सीइंग दिस पर्टिकुलर मेथड। पोटेंशियोमेट्री में हम पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। पोटेंशियल डिफरेंस बात वही है वोल्टेज के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दो एनोड और कैथोड के बीच में, और जो हमारा एनालाइट है जिसको कि हमने इसमें सॉल्यूशन में मिलाया गया है, जब इसकी करंट जब फ्लो होगा तो एक समय के बाद में जब एनालाइट इसका जो रिएक्शन करते जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अंतर आने लग जाएगा। देन स्लोली हमको एंड पॉइंट तक के जो कि हमारा जो टाइट्रेंट है, जो कि नॉन कंसंट्रेशन रहेगा, वो अपन इसको यूज़ करके उसका एंड पॉइंट के समय में इंडिकेटर जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमको मदद करती है एनालाइट के कंसंट्रेशन को निकालने में। बीच बीच में हमको यहाँ पर वी हैव टू सी दैट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में पीएच की मॉनिटरिंग और बाकी ये काफ़ी शार्प मेथड होती है एनालिसिस की, और इसको फूड इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री में कई जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ओवरऑल हमारे पास में जो एक जनरल ओवरव्यू जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होता है, हमारे पास क्या क्या रहता है। नॉर्मली सेल रहेगा, नर्स्ड जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा, इलेक्ट्रोड्स रहेंगी जो कि दो इलेक्ट्रोड्स रहेंगी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कि हमारा कांस्टेंट पोटेंशियल पर मेंटेन करके रखना पड़ता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो डीएमई या दूसरी भी हो सकता है, और ये पोटेंशियल इसी का जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का होता है यही एनालाइट की कंसंट्रेशन के साथ में वेरी होता है। नर्स्ड इक्वेशन जैसे कि हमारे सामने है, फंडामेंटल रिलेशनशिप जो हमने देखा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ई के फॉर्म में अपन जो मेजर करते हैं वो शुरुआत में और आखिरी में अगर हम इसको निकालने का हमको इनिशियल और फाइनल डाटा मिल जाता है तो एनालाइट के आधार पर अपन इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। सेल का जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के आधार पर अपन इसको मेजर कर सकते हैं। हियर द इंडिकेटर पोटेंशियल इज में से अपन माइनस कर देंगे जो रेफरेंस
जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, फिर आपका जो डेफिनेटली थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमको जो लिक्विड जंक पोटेंशियल का जो अपन इंटरलिंकिंग होता है उसको यूज़ करेंगे। फंडामेंटल कंसेप्ट्स वही हैं इसके, बेसिकली 4 या 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द सेटअप, देन वी हैव द टाइट्रेशंस, टाइट्रेंट एडिशन, फिर हम इसको जो प्रयोग करते हैं सेटअप के अंदर हम इसकी जो पॉइंट्स रहेंगे, वी हैव द पोटेंशियल चेंज, एंड फाइनली हमारे सामने सेटअप के बाद में जो जब रिएक्शन चालू होता है तो फिर धीरे धीरे ऊपर से ड्रॉपिंग मर्क्यूलर इलेक्ट्रोड से टाइट्रेंट ऐड होते जाता है, जो एनालाइट है वो रिएक्शन चालू कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस होने लग जाता है, और एंड पॉइंट पर व्हाट वी सी हियर इज़ अ शार्प चेंज इन द end point where the electromotive force becomes at the end point. This signals the completion of the reaction, और फॉलोइंग हमको कंसंट्रेशन जो हमको ज्ञात हो जाती है। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रिंसिपल की जहाँ तक अपन बात करें तो आपके सामने ये 4-5 चीज़ें थी। अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा रहता जब अपन इसको स्टडी करेंगे डिटेल में, सो वी शैल बी सीइंग मोर इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक points from the general overview. From the applications here, this electrochemical methods are quite precise from the knowledge point of view. pH measurement के साथ में है, और ISEs डेफिनेटली हमारी जो भी हैलाइड्स होते हैं उनका मेजरमेंट होता है। आयन स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड अगर हम इसको बनाएंगे तो हमको केवल बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी वी आर यूजिंग this analysis, so that is quite helpful. इंडस्ट्री में इनका there are having very important uses. So environmental monitoring भी काफ़ी important होता है, especially in metro cities also, and we are seeing we are hearing in the news also this, वहाँ पर वो जो एनालिसिस होता है वो इलेक्ट्रिकल एनालिसिस से ही अपन करते हैं। In pharmaceutical analysis, this is a very very important tool for studying the various reactions, जैसा रेडॉक्स रिएक्शन भी है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी है। वेरियस एग्जांपल्स जो इसके एडवांटेजेस हैं, ये क्वाइट वर्सेटाइल होती है। पोटेंशियोमेट्री डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, इसमें कोई ग्रेविमेट्री या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता है, कोई इनडायरेक्ट नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट मेथड होता है। आपको कलर प्रेसिपिटेट मिलता है और आपको सैंपल्स को कोई पहले से डाइल्यूट या कंसनट्रेट नहीं करना पड़ता है, हमको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। इसकी सेलेक्टिविटी रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है और हमको बस इसके हिसाब से ढालना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पोटेंशियोमेट्री के बाद में है वो है आपका पोलरियोग्राफी। पोलरियोग्राफी अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी कह सकते हैं। हियर ड्रॉपिंग मर्क्यूलर इलेक्ट्रोड को अपन यूज़ करते हैं। वी आर अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर यूजिंग द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंसंट्रेशंस। हम इलेक्ट्रो एक्टिव सब्सटेंसेस का अपन एक सिग्मॉइड ग्राफ बनाते हैं, पोलरियोग्राम, इसलिए इनका नाम भी है, वी आर हैविंग द नेम पोलरियोग्राम, पोलरियोग्राफी, बिकॉज ऑफ दैट पोलरियोग्राम विच इज़ अ सिग्मॉइड कर्व and we have the half wave potential. This polarography is very important for measuring the various uses for the detection of the drugs, the biological samples, and we have the analyzing of metals is done in geography and geology also. Apart from this, a small amount of toxicology studies can also be carried out from here. Before we move to the another topic, here we are having this conductometry in the concepts which we had been already seeing. here हम conductometry के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि दोनों में अपन वेरी करते हैं. So we concise our lecture here that in conductometry we were measuring the electrical conductivity. In potentiometry we were trying to measure the voltage difference at a constant current. And polarography, here we are giving a polarigram, the graph जिससे कि हम इसको यूज़ करते हैं. और इसका जो मिनिमम सैम्पल प्रिपरेशन और हमको जो फ़ायदे और भी जो अपन इसको स्टडी कर सकते हैं. और बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड दे आर क्वाइट कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड. इनमें ऑटोमेशन और मिनिएचराइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है. ट्रेस लेवल एनालिसिस, बहुत छोटे छोटे लेवल की एनालिसिस भी इससे बंद कर सकते हैं. सिलेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी हाई सेंसिटिविटी क्वाइट हेल्पफुल है. और फार्मास्यूटिकल के अलावा भी फूड इंडस्ट्री में और तमाम चीज़ों में इनका प्रयोग करता है.
So this was all in this lecture. Finally, if you have some questions, we shall be studying in detail as per requirement. Thank you.